ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 टेक्स्ट नंबर 28 हो गया था। हो गया था। Bhagavad Gita as it is, chapter 1, observing the armies. Text 32 to 35. Kim no rajyena govinda, किं नो राज्य गोविंद, kim bhogair jivitena va, किं भोगे जीवनेन, yesham arthe kangshitam no, येषामर्थे काङ्क्षितो, rajyam bhoga sukhani cha. राज्यं भोगा सुखानि च। आपको मिला 30 मिल गया टेक्स्ट 32 35 गॉट इट ओके। तयमेव स्थिता युद्धे तयमेव स्थिता युद्धे, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च प्राणास्तथा धनानि च। आचार्या पितरः पुत्रास् आचार्या पितरा पुत्राश्च, तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः मातुला ससुरा पौत्रा, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा श्याला सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान् हन्तुमिच्छामि, नतोऽपि मधुसूदन नतोऽपि मधुसूदनः। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते हेतो किं नु मे, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धृतराष्ट्राणां, का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। का प्रीतिः स्यात्। Translation purport by Srila Prabhupada. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the 3 words, let alone this earth. What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? Purport. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy his senses and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. Covet means desire. But when one takes the opposite way, namely, when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence and after victory. This is a typical calculation of material life.
The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord, and if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Om Ajnanatimirandhasya. Sorry. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. तो अभी अर्जुन अलग अलग उनके जो मन में विचार उठ रहे हैं, जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, एक एक करके अभी वो भगवान के सामने रख रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन का विचार क्या आ रहा है कि भगवान, ये युद्ध करने से मेरे सारे सगे संबंधी तो मारे जाएंगे, तो फिर उससे मुझे क्या सुख प्राप्त होगा। अर्जुन यहाँ पर एक एक करके गिन रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, अरे मेरे गुरुजन, मेरे भाई भतीजे, और ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सारे के सारे यहाँ पर हैं। और अर्जुन देख पा रहा है कि युद्ध में तो इतना घमासान युद्ध होगा कि इसमें हार्डली कोई बचेगा, सब मारे जाएंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से बड़े बड़े योद्धा हैं, है ना। तो इसलिए ये देख कर के अर्जुन के मन में अभी ये प्रश्न उठ रहा है कि ये युद्ध से तो मैं सुखी होऊंगा नहीं, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये सब जो अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो सब हमारे सबकी भी मेंटालिटी को व्यक्त करते हैं, डिजीज्ड मेंटालिटी को। एक्चुअली तो अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, लेकिन भगवान उसको अपनी इच्छा से बिविल्डर किए हैं। थोड़ा आप इधर आ जाइए, आप भी थोड़ा आगे आ जाइए, सो दैट वी कैन सी फेसेस इंटरेक्ट क्लियरली। तो ये है टिपिकल भौतिकतावादी लोगों की कैलकुलेशन सुखी रहने की। सब लोग क्या सोचते हैं, हम लोग भी ऐसा ही सोचते आए हैं बचपन से, और ये जीवन में नहीं, अनगिनत जीवनों में, क्योंकि यही सामान्य विचार है। क्या मेरा सुख किस में है, मेरी इंद्रियों की संतुष्टि में। ये है नॉर्मल कैलकुलेशन। जिह्वा को जो अच्छा लगता है उसको खाओ, दैट इज हैप्पीनेस। ऐसे हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है इत्यादि। तो जितना अधिक हो सके इन इंद्रियों को इनके विषय दो, इंद्रिय विषय बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, उतना ही हम सुखी होंगे। यानी हम इक्वेट करते हैं सेंस प्लेजर को अपने वास्तविक सुख से। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर का सुख मतलब मेरा सुख। तो अगर मेरी इंद्रियों को अच्छा सुख मिल रहा है तो मतलब यही मेरी सुख है। और ये लगता है इसमें प्रश्न ही क्या है, बिल्कुल इट्स वेरी ऑब्वियस, वी एक्सपीरियंस इट दैट व्हेन वी टेस्ट समथिंग नाइस वी फील नाइस, करेक्ट। सो इसलिए लगता है कि ये एक एक्सियोमेटिक ट्रुथ है। यू नो व्हाट इज मीन बाय एक्सियोमेटिक ट्रुथ? हाँ हाँ, axiomatic truth means
the truth which doesn't need any proof, which is so obvious that there is no need to prove it. It's obvious, correct, axiomatic truth. ठीक है, तो हमको ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि इंद्रियों के सुख से हम सुखी होते हैं, दैट्स इट. फिर और अंदर की इंद्रियां भी हैं, मन, तो फिर मन का सुख है सम्मान, प्रतिष्ठा, ये मन के अपने सुख हैं, है ना. फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पर है कुछ सुख, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लाइक दैट, एंड अल्टीमेटली बाय दैट फील दैट यू आर ग्रेट, यू आर मोर इंटेलिजेंट. सो ऑल दिस थिंग्स, हमारी ये सब चीज़ें अंदर और बाहर की इंद्रियों को संतुष्ट करती हैं, और इसलिए सब लोग यही सोचते हैं. और इसलिए अर्जुन भी यहाँ पर एक सामान्य लोग जो सोचता है उसी एक प्रकार से सोच रहे हैं कि हे गोविंद, आपका नाम तो गोविंद है ना, कृष्ण का नाम गोविंद है. गोविंद का क्या अर्थ है? गो मतलब गाय और इंद्रियां, दोनों अर्थ हैं गो के. जो गाय और इंद्रियों को संतुष्ट करता है उनको गोविंद कहते हैं. तो भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय हैं, हमेशा वो गोरक्षण, इसलिए उनका एक नाम है गोविंद. और एक और नाम गोविंद इसलिए क्योंकि भगवान हमें संतुष्ट करते हैं, भगवान हमें प्रसन्न करते हैं. यस, इस भौतिक में कौन प्रसन्न रह सकता है? सफरिंग लाइक दैट, somebody might be catching him or what, I don't know, and that is the reality. Okay, so सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि कोई भगवान है तो लोग मंदिर में जाते हैं इसी विचार से कि भगवान ये दुख है दूर करो, भगवान ये सुख दो. क्योंकि उन सभी लोगों की सामान्य अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि अगर भगवान है तो उसका काम क्या है? मुझे सुखी रखना, उसका और कोई तो हेतु है नहीं. बैंक का काम है हमें लोन देना, उसी प्रकार से भगवान का काम है हमें सुख प्रदान करना. ठीक है, इसलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? पीपल थिंक दैट गॉड इज द ऑर्डर सप्लायर. भगवान देखो हम आपको इतना दे रहे हैं पैसा, तो आप हमें इतना देना, अगर हमें इतना दोगे तो फिर हम जो है इतना करेंगे आपके लिए. अगर आपने हमारी मन्नत पूरी कर दी तो फिर हम माता मैया, है ना, अगर आपने मन्नत पूरी की तो हम वैष्णो देवी जाएंगे, फिर वहाँ पर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे आपके ऊपर. दैट्स व्हाट जनरली पीपल थिंक, करेक्ट. तो गॉड इज़ द ऑर्डर सप्लायर, करेक्ट. तो इसलिए अर्जुन भी ऐसे सोच रहे कि गोविंद आप समझते क्यों नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, आप मुझे क्यों युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, मुझे इससे क्या सुख मिलेगा, और आपका काम है देखना कि मुझे सुख किस में मिले. तो जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे युद्ध करने में सुख नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे युद्ध क्यों करने को कह रहे हैं? दैट्स द पॉइंट. लेकिन समझना क्या है, अभी भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन समझेंगे, और हमें सबको भी ये समझना है कि हमारा वास्तविक सुख किस चीज़ में है, फॉर्मूला क्या है सुख का. इंद्रिय भोग वास्तव में हमारा सुख नहीं है, क्योंकि हम इंद्रिय नहीं हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं. हम वास्तव में एक आत्मा है, नित्य आत्मा. और नित्य आत्मा भगवान श्री कृष्ण के हम नित्य दास हैं, नित्य सेवक हैं. तो वास्तव में आत्मा का जो सुख है, हमारा जो सुख है, वो भगवान की सेवा करने में है, ना कि इंद्रिय भोग करने में. इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को भगवान की सेवा में लगाने से, जब भगवान संतुष्ट होते हैं हमारी सेवा से, तब हम स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होते हैं. ये कैलकुलेशन है. लेकिन जैसे कैलकुलस, इंटीग्रल दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को सही में नहीं आता, उसी प्रकार से ये स्पिरिचुअल फार्मूला भौतिकतावादी लोगों को सही में नहीं आता है, करेक्ट. ये कैसे, भगवान को संतुष्ट करने से हम कैसे संतुष्ट होंगे? क्योंकि उनकी भगवान की अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवान मतलब वो जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे. सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फार्मूला. भगवान की इंद्रियों को क्या संतुष्ट करना है? भगवान तो भगवान है, उसका सब कुछ है, उसे क्या संतुष्ट करना है? उसे क्या चाहिए? चाहिए तो हमको चाहिए, उसका काम है हमको देना. सो हैं
हाँ, सो तेरा तुझको अर्पण, बट फॉर व्हाट? जिससे कि यू सेटिस्फाई मी। तो ये है अध्यात्म की शुरुआत, ये समझ कि भगवान एक व्यक्ति हैं, हम एक व्यक्ति हैं, हमारा उनके साथ एक प्रेम संबंध है, एक बिजनेस रिलेशन नहीं है हमारा भगवान के साथ। मैंने भगवान आपके लिए इतना किया, आप मेरे लिए इतना करो। वास्तव में वो रियल संबंध नहीं है हमारा, वो मिसअंडरस्टूड है, वो कंस्ट्रूड है। वास्तविक संबंध है कि हमारा भगवान के साथ एक प्रेम संबंध है। वो जो भगवत जो ये प्रेम संबंध है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है भौतिक जगत के लोगों के लिए, क्योंकि उनको प्रेम पता ही नहीं क्या होता है। जिसको वो लोग प्रेम बोलते हैं वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। क्योंकि काम वासना में क्या होता है, दो लोग आपस में एक चाहते हैं कि वो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करे, और दूसरा चाहता है वो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करे। जब तक कोई हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है तब तक हमें वो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है। तो केंद्र क्या होता है उसमें, इस रिलेशनशिप में, लस्ट के रिलेशनशिप में केंद्र क्या होता है? मेरी इंद्रियों को संतुष्टि। इसलिए लड़का लड़की फ्रेंड्स बनते हैं विद एन अंडरस्टैंडिंग, ओ ही और शी satisfies my senses so nicely, therefore she or he is my friend, correct? और फिर शादी भी कर सकते हैं, जो धीरे धीरे आजकल कम होता जा रहा है, बट ओके, शादी करते हैं। फिर शादी के बाद में when some point comes there is a fight, clash of interests, तो फिर क्या लगता है, now that other person is no more satisfying my senses, जो मैं चाहता हूँ वैसा वो नहीं करता है, ओके तो फिर इसलिए वो तथाकथित प्रेम टूट जाता है। क्यों? That other person is no more satisfying my senses, he is no more pleasing to me, therefore that relationship breaks। इसका मतलब क्या था? वो रिलेशनशिप का आधार क्या था? कि दूसरा व्यक्ति कितना मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है, दैट वाज द बेसिस ऑफ दैट रिलेशनशिप। ये लस्ट का लक्षण है, ना कि प्रेम का लक्षण है। प्रेम क्या होता है? प्रेम में सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो दूसरी तरफ व्यक्ति है उनको संतुष्ट करके। ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम संबंध का ये स्वभाव है। दोनों तरफ से इसी प्रकार से होता है, और दोनों का कंपटीशन क्या होता है? मैं अपने लिए बिल्कुल सोचे बिना, हाउ कैन आई सेटिस्फाई द अदर पर्सन विदाउट लीस्ट थॉट कि बदले मुझे क्या मिलेगा। सेल्फलेस लव, इट्स जस्ट हाउ आई कैन सर्व द अदर पर्सन, दैट इज लव। समझ रहे दोनों में कितना डिफरेंस है? अभी ये जो लव है, इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? दैट द अदर पर्सन शुड बी लवेबल। You cannot just selflessly love anyone. That person should be worthy of service. He should have such qualities that he attracts your service. And by that service, by serving him, you should feel satisfied. You should naturally, without thought of it. जब ऐसा होगा तभी प्रेम हो सकता है, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम केवल भगवान और जीव के बीच में ही संभव है। जीव और जीव के बीच में प्रेम संभव है जब केंद्र में, दोनों के केंद्र में भगवान हो, तब। दो डिवोटीज, दोनों का ही कृष्ण से प्रेम है, उस आधार पे दोनों का आपस में प्रेम होगा कि दोनों का सेंटर है हाउ टू सर्व कृष्ण। सो देयर लव इज how together we can serve Krishna. That will be the basis of their relationship. तो पहले कृष्ण से प्रेम होगा, और फिर कृष्ण प्रेम के कारण उन सब में प्रेम होगा जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेम संभव है, ये वास्तव में प्रेम है। ये है भगवद गीता का मैसेज, इस तरह से प्रेम। लेकिन सब लोग का जो जीवन है, सब लोग की जो रिलेशनशिप है,
वो तो लस्ट के ऊपर बेस्ड है। कुछ हद तक हम देख सकते हैं जैसे माता का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसमें कुछ हद तक वो जो भगवान के प्रति प्रेम है उसका विकृत रूप है। एक माता का कुछ हद तक ये भावना होती है कि मुझे बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चा खुश हो सुखी हो तो मैं खुश हूँ, पर उसकी भी एक लिमिट होती है। एट वन पॉइंट मदर ऑल्सो गिव्स अप। ये तो लाइक देयर वाज अ स्टोरी कि एक माता थी, बच्चा था, तो बाढ़ आ गई तो सबको धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। तो बच्चों को बचाती गई ऊपर आ गया, यहाँ पर भी रख लिया, लेकिन फिर एक बार यहाँ हो गया तो फिर बच्चे को नीचे रख दिया, वो खुद चढ़ी हो गई। सो इवन मदर का लव कुछ हद तक सेल्फलेस है, लेकिन क्योंकि जो बच्चा है वो भगवान नहीं है, उसके अंदर वो गुण नहीं है, इसलिए मदर चाहते हुए भी बच्चे के प्रति अपना पूरा लव नहीं दे सकती है। हम लोग सब अंदर से क्या सोचते हैं, हम एक ऐसा पर्सनैलिटी चाहते हैं जो परफेक्ट हो। अगर ऐसा कोई परफेक्ट पर्सन होगा देन वी वांट टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन, करेक्ट। तो जब दूसरी तरफ परफेक्ट पर्सन होगा तभी वास्तव में प्रेम संभव है। परफेक्ट इन एवरीथिंग, ही इज परफेक्ट पर्सन, उसके अंदर कोई लस्ट नहीं है, उसके अंदर कोई ग्रीड नहीं है ना, और उसके अंदर सब अच्छे गुण हैं, तभी तो वो प्रेम को रेसिप्रोकेट कर पाएगा। अगर हम उसकी सेवा कर रहे हैं और वो कृतार्थ नहीं है, कृतार्थ मतलब कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, तो आप पहले प्रेम करना शुरू करेंगे, पर आपको लगेगा तो या तो ही कृतज्ञ है, तो आप यू विल स्टॉप, करेक्ट। सो ऑल गुड क्वालिटीज, परफेक्ट पर्सनैलिटी जो होगा उसी के ही प्रति प्रेम संभव है, एंड दैट परफेक्ट पर्सन इज ओनली गॉड। ह्यूमन बींग्स कंडीशन, जिनको खुद कृष्ण प्रेम नहीं है जिनके अंदर, उनके अंदर तो माया के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य कुछ ना कुछ मात्रा में होगा ही होगा, ठीक है। अभी माता जो है एक बच्चे के प्रति कर रही है प्रेम, और वो बच्चा जो है दुष्ट, कुछ तो दुर्गुण है उसके अंदर होंगे ही, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो एक समय आएगा जब माता ही बोलेगी ये इतना दुष्ट है, कैसे मैं इसके प्रति प्रेम करूँगी। तो आप देखते हैं बच्चे बड़े होते हैं, शुरू शुरू में प्रेम रहता है, फिर जब बच्चे बड़े धूर्त निकलते हैं कभी, तो माता भी उसको दिखा दे, जब क्या फायदा तेरा, यूजलेस, गेट आउट फ्रॉम, करेक्ट। क्योंकि रेसिप्रोकेशन चाहिए ना, संबंध बनाने के लिए दोनों तरफ से कार्य होता है, ठीक है। सो दैट इज पॉसिबल ओनली विथ कृष्ण। कृष्णा रामा मीन्स भगवान के साथ, बिकॉज ही इज परफेक्ट पर्सन। और हमारे अंदर भी जब हम बद्ध अवस्था से बाहर निकलेंगे, हमारे अंदर भी क्लियर समझ होगी कि हम भगवान के दास हैं, तब धीरे धीरे रेसिप्रोकेशन से वो जो प्रेम संबंध है वो वापस स्थापित होगा। तो ये है अर्जुन का पहला मिसकंसेप्शन, जो हम सबका मिसकंसेप्शन है, कि वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, and even we want to engage God in our sense gratification. That is our first misconception. उसकी जगह क्या होना चाहिए, अगर हम वास्तव में नित्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका उपाय है कि हम धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करते हुए जो भगवान के प्रति हमारी नेचुरल सर्विस एटीट्यूड है, भक्ति है, प्रेम है, उसको डेवलप करें, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। उसका पहला चरण है टू सरेंडर टू गॉड। प्रेम डेवलप होता है पहले समझते कि हम भगवान, हम छोटे हैं, आप महान हैं, हम आपके दास हैं। इस प्रकार से शरणागति से धीरे धीरे वो संबंध शुरू होता है। तो इसलिए भगवद गीता का संदेश है दैट वी शुड ओबे गॉड्स ऑर्डर, वी शुड सरेंडर टू हिम, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। फिर धीरे 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 इंटीमेसी बढ़ती है, फिर वो लव जो है वो और ज़्यादा आगे प्रगाढ़ बनता है। बट लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू सर्व, नॉट लव मीन्स टू एक्सप्लॉइट और टू एन्जॉय, लव मीन्स टू सर्व। सो इसलिए सर्विस एटीट्यूड, तो वो धीरे धीरे धीरे, इसलिए अर्जुन जो है तैयार हुए बाद में युद्ध करने के लिए,
कृष्णा, ये आपकी इच्छा है, मैं समझ गया हूँ, एंड आई एम योर सर्वेंट, सो लेट मी फुलफिल योर डिज़ायर, करिष्ये वचनम तव। तो ये पॉइंट पर हमको आना है, दैट वी डेवलप अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड वी अंडरस्टैंड दैट हमारा बेनिफिट है, हमारा सब कुछ अच्छा है तभी है जब हम भगवान की सेवा करेंगे। विद दैट विल स्टॉप। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? प्रभु जी, if I think too much bad, yes, मतलब चेतना किसी की विशुद्ध है, लेकिन उसने उसे एक्शन में टर्न नहीं किया है, विशुद्ध है। हाँ, मतलब चेतना साफ नहीं है, मैं गलत सोचता हूँ। अशुद्ध है, विशुद्ध नहीं, अशुद्ध। विशुद्ध मतलब परफेक्टली शुद्ध। अशुद्ध है, लेकिन मैंने उसे एक्शन में टर्न नहीं किया, जैसे अपने आप को रोक लिया है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं साफ नहीं कर पाया, तो भी मैं सेम जिम्मेदार हूँ। अगर उस सेक्शन में टर्न करता तो भी वही पनिशमेंट रहेगा, और अभी नहीं करता। नो, नॉट लाइक दैट। कलयुग के अंदर जो चीज़ केवल मन के अंदर तक कलमश है तो उससे पाप नहीं लगता है, और अगर हमारी इच्छा है कि हम धीरे धीरे उससे निकलना चाहते हैं, सो दैट इज़ लॉडेबल। क्योंकि ये तो है नहीं कि तुरंत एकदम से आज हमने कि मुझे शुद्ध करना है, तुरंत यू बी प्यूरिफाइड। देयर विल बी ए प्रोसेस टू प्यूरिफाई। द प्रोसेस इज ओके, आई अंडरस्टैंड दिस इज़ रॉन्ग। तो मन के अंदर इच्छा आ रही है, विचार आ रहे हैं, बट देन आई अंडरस्टैंड दिस इज़ रॉन्ग, सो आई डोंट डू इट। सो दिस इज़ लॉडेबल, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। उसका पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका तो प्रयास है ना उसको रोकने का। हाँ, लेकिन अगर हम फिर सोच रहे हैं ठीक है एक्शन नहीं करो, मन में एंजॉय करते रहो, तो फिर वो जो मन में है वो एक्शन में आ ही जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर हमारा हेतु यह है कि मुझे जैसे अभी स्मोकिंग नहीं करना है, अब आप स्मोकिंग के अभ्यस्त हैं तो इच्छा तो आएगी, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि मुझे नहीं करना है, तो आप इसको रोक रहे हैं। तो ऑफकोर्स जब आप स्मोक नहीं करेंगे तो आपको वो जो स्मोकिंग के दुष्परिणाम है वो नहीं मिलेंगे। हाँ, कैंसर या वॉट एवर दैट थिंग्स, या चोरी करना है, क्योंकि चोरी करने की आदत है, अब मन में इच्छा हो रही है चोरी करो, बट ही इज़ नॉट डूइंग इट, तो ऑफकोर्स उसको चोरी करने का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग इट। लेकिन अगर मान लीजिए आप ठीक है सेक्स, ओके आई शुड नॉट एंगेज इन इलिसिट सेक्स, बट देन यू डू सम in some other way in your mind, or seeing pornography, or again and again you are indulging in mind in that thought, you are not trying to restrict that also, तो फिर कब तक रोकोगे? माइंड में जब वो बढ़ाते जा रहे हो तो इट विल कम इन एक्शन। तो इसलिए ये एक लेवल है कि हम एक्शन में उसको रोक रहे हैं, बट फर्दर वी हैव टू कंटिन्यू द प्यूरिफिकेशन, कि वो माइंड में आना ही बंद हो जाए, तभी वो नेचुरल कंट्रोल कहा जाएगा। माइंड में आना बंद हो जाए और माइंड फिल हो जाए प्रॉपर एक्शन से, प्रॉपर थॉट से, प्रॉपर डिज़ायर से, तब वो परफेक्ट कंट्रोल कहा जाएगा। तो इट्स स्टेप बाय स्टेप। पहले एक्शन को रोको, क्योंकि एक्शन को रोकना आसान है मन को रोकने से। मन के अंदर विचार आने को रोकना तो बहुत मुश्किल काम है, उससे ज़्यादा आसान है पहले कम से कम एक्शन को रोका जाए। लेकिन उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि मन को भी शुद्ध करना है, जिससे कि मन में वो गलत विचार भी बंद हो जाए। एनीथिंग एल्स? प्रभु जी, you can write question, that may also be good, क्योंकि अभी तो चलो पूछिए, बट Lordship is also drinking the Madeira and mating. So how they Krishna punish him or not? क्या lordship also Shiva yeah, also think material things, then how Krishna punish him? Lord Shiva? Lord Shiva does not think material thing. Lord Shiva is a like that
भांग, भगवान वो शिव जी तो भांग नहीं पीते हैं, वो तो हमारा मिसकंसेप्शन है कि शिव जी भांग पीते हैं। शिव जी का अनुचर, शिव जी का कार्य क्या है? तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करना, तो ये शिव जी का कार्य है। तो शिव जी के जो अनुचर हैं वो भूत प्रेत पिशाच तमोगुणी लोग होते हैं, वो लोग भांग पीते हैं। शिव जी कहीं भांग नहीं पीते हैं, शिव जी तो महान वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी भांग नहीं पीते हैं, वो उनके अनुचर हैं जो भांग पीते हैं। वो उज्जैन में जैसे एक मंदिर है महाकाल मंदिर, उसमें देखता हूँ वो शराब की बोतलें जला देते हैं। दैट इज अभी जो शराब पीता है, शिव जी आप भी पियो। सो देयरफॉर शिव जीज वर्क इज़ टू कीप देम अंडर कंट्रोल। दे आर, उनको क्या है, कम से कम वो लोग शिव जी को मानते हैं, उससे उनका थोड़ा शुद्धि होता है, क्योंकि शिव जी एक भगवान के महान भक्त हैं, तो इस तरह से उनका थोड़ा शुद्धि होता है। भूत प्रेत पिशाच, दे हैव रिस्पेक्ट फॉर शिव, दैट रिस्पेक्ट इज़ ग्रेजुअली प्यूरिफाइंग देम, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। लेकिन शिव जी कभी ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं। प्रभु जी, जब आत्मा भगवत धाम जाती है, जैसे हमारे सोल वहाँ जाएगा तो वहाँ भी इंसान ही बनेगा। इंसान से आपका अर्थ क्या है? मतलब जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं, भाई वहाँ तो स्पीसीज। आइडेंटिटी होगा तो उनको शेप, साइज, हाँ हमारा हाइट, हाँ। सो रूप होगा, रूप, फॉर्म होगी, फॉर्मलेस नहीं, फॉर्म होगी, लेकिन वो फॉर्म स्पिरिचुअल फॉर्म है। उसका हाइट और ब्रेथ, वो जैसे हम मटेरियल, जब हम क्लास चल रही है देन वी कैन जस्ट फोल्ड आवर हैंड, दैट्स ऑल। क्योंकि यहाँ पर जब कक्षा है तो ये जो विचार हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, दैट इज़ कृष्णा। सो एज गुड एज रिस्पेक्टिंग कृष्णा इज हियरिंग। सो वहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्म है, तो हाथ हैं, पैर है, सब है, लेकिन स्पिरिचुअल, मटेरियल नहीं, मैटर का बना हुआ नहीं है। और मैटर जो होता है उसी का ही लेंथ, ब्रेथ, हाइट इत्यादि होता है। अभी ये कंसीव करना मुश्किल है कि जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं है तो उसका वो फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि अभी हम लोग का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो केवल मैटर के टर्म्स में है। जैसे अभी हमारे लिए 100 डायमेंशंस में भी कोई चीज़ हो सकती है, वो सोचना में हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट देयर कैन बी रियलिटीज़ इन मैनी डायमेंशंस। हम लोग को 3 डायमेंशन का ही पता है। जिनकी आँखें, कई एनिमल्स हैं जो केवल 2 डायमेंशन में ही देखते हैं, 3 डायमेंशंस में नहीं देखते हैं। तो उनके लिए 3 डायमेंशंस का मतलब क्या है समझना संभव नहीं है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल डायमेंशंस कैसे होती हैं वो समझ में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैटर नहीं है, बट देयर आर स्पिरिचुअल फॉर्म्स। इट इज़ स्पिरिट, नॉट मैटर। मैटर रियलिटी से बियॉन्ड एक और एग्जिस्टेंस है स्पिरिचुअल, लेकिन वहाँ फॉर्म है। लेकिन वो फॉर्म जो है वो लिमिटेड नहीं है बाय मैटर। जैसे भगवान कृष्ण थे जब यहाँ, तो अब अर्जुन बांध रहा है, तो फॉर्म है, बट ही कैनॉट टाई, ही कैनॉट बाइंड, बिकॉज इट इज नॉट मैटर। ओके, लाइक दैट। तो इंसान, हम जब जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग हमारे भाव में हम भगवान के साथ में रिलेट करते हैं। सो कुछ जीव हैं जो गाय के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, कुछ पेड़ पौधे के रूप में करते हैं, जल के रूप में करते हैं, मिल्क के रूप में भी करते हैं। देयर एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज कॉन्शियस। So in that world, everyone has same consciousness and सेम मतलब means the trees and cows and humans of that will all have same mind. we'll all have the Krishna consciousness कि we are servant of Krishna. They have no other desire. Only desire of the tree is how to serve Krishna. Only desire of the cow is how to serve Krishna. हम ये वृंदावन में भी देख सकते हैं, भगवान की जो वृंदावन लीला है उसमें भी सब गोपियाँ, जो ब्रजवासी हैं, सब देर ऑल जस्ट देर ओनली कॉन्शियसनेस हाउ टू सर्व कृष्णा,
हाउ टू प्लीज कृष्णा। और वो उनके फिर चेतना के वहाँ पर मतलब दे आर ऑल प्योर, बट विद इन दैट प्योर देर आर ग्रेडेशंस, शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो इस तरह से अंतर भी है, लेकिन हैं सब प्योर। तो मदर यशोदा का भगवान के साथ है कि ये मेरा बालक है। अभी वही चीज़ अर्जुन की नहीं होगी, अर्जुन का वो भावना नहीं होगी। तो भाव अलग अलग है, रिलेशनशिप अलग अलग है, लेकिन सभी प्योर है। किसी में भी मेटीरियल डिज़ायर नहीं है। ओनली डिज़ायर इज टू प्लीज कृष्णा, प्लीजिंग कृष्णा एज काउ, प्लीजिंग कृष्णा एज सर्वेंट, प्लीजिंग कृष्णा एज फ्रेंड, प्लीजिंग कृष्णा एज मदर, प्लीजिंग कृष्णा एज वाइफ or as a lover. So there can be different modalities, but pleasing Krishna is the only desire. कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो जो फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम आने वाला है तो दो होते हैं, एक तो जैसे मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है और दूसरा तो मैथ्स से डरता है, उसमें फेल ना हो जाए इसीलिए वो पढ़ता है। तो अगर दो रीज़न से देखते हैं, एक तो ये है कि अगर आप गॉड से नहीं जुड़ते हो, यू शुड गो टू हेल और समथिंग, Yes, by fear, out of fear. You worship God out of fear. Another is you worship God out of love. Correct? तो ये जो है fear love में कन्वर्ट होता है। हाँ। सो जब हम ये समझते हैं, जैसे भगवद गीता और हमारे शास्त्रों में पूरा बताया गया है कि अल्टीमेट वर्शिप इज़ नॉट आउट ऑफ फियर, अल्टीमेट वर्शिप इज़ आउट ऑफ लव, दैट इज़ हायर। ठीक है, बट इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर डिजीज्ड देन यू हैव टू हैव फियर ऑल्सो। जैसे जब बच्चा होता है तो शुरू में तो डांट, नहीं मारे डांट, लेकिन साथ साथ धीरे धीरे वो समझता है कि माता पिता मेरे हितैषी हैं, मेरे वास्तव्य में मेरे प्रिय हैं। जैसे जैसे उसकी ये चेतना बढ़ती है, तब फिर वो माता पिता की बात मानना, उसका जो रिलेशनशिप है वो फियर का नहीं रहता है, इट बिकम्स आउट ऑफ लव। तो वो धीरे धीरे मैच्योर होता है उसमें, एज वन गेट्स प्यूरिफाइड। तो इसलिए शास्त्रों में भगवान के साथ संबंध केवल फियर का ही नहीं रखा गया है, ऐसा ही नहीं है। उसमें सभी, उसमें हाईएस्ट लेवल तक आउट ऑफ लव का भी चित्रण है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही जब हम आउट ऑफ फियर कर रहे हैं, तब भी हमें पता है कि इट इज़ नॉट दैट ऑलवेज आई विल वर्शिप गॉड, दैट इज़ द ओनली रिलेशनशिप विद गॉड। इट इज़ ओनली बिकॉज नाउ आई एम डिजीज दैट आई अंडरस्टैंड दैट if I do sinful activities I will go to hell, but that is not seen exactly like जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, उसमें तो भगवान की इबादत करने का यही रूट मेन प्लेटफॉर्म है कि देखो भाई, भगवान को भजोगे तो स्वर्ग जाओगे, भगवान को मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। बेस क्या रहा? मेरा एंजॉयमेंट ही रहा। मेरे एंजॉयमेंट का ही बेसिस लेकर के भगवान को अगर नहीं करोगे तो हेल जाओगे, मतलब सफ़र करोगे, और अगर भगवान को आप मान लोगे तो एंजॉय करोगे बाय गोइंग टू स्वर्गा। लेकिन भगवान की सेवा करने का सेल्फलेसली वो तो विचार ही नहीं है वहाँ पर। अगेन पर्सनैलिटी रिमेन्स द सेम फॉर माई हैप्पीनेस, इसलिए मुझे मानना है। नहीं मानूंगा तो नरक में जाऊंगा, मानूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति से मेरा कोई नित्य संबंध तो है ही नहीं प्रेम का। सो शास्त्रों में उस प्रकार से वर्शिप करने को नहीं कहा गया है वैदिक शास्त्रों में। वैदिक शास्त्रों में है कि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार हमें फैसिलिटी देते हैं जो हम करना चाहें, और फिर उसके अनुसार हमें फल भुगतना पड़ता है। लेकिन ये भगवान की अपनी इच्छा नहीं है। तो हमें पाप कर्म करने से हम नरक जाते हैं। क्यों? पाप और पुण्य भगवान ने क्यों बनाया? क्यों किसी चीज को पाप घोषित किया है, क्यों किसी चीज को पुण्य घोषित किया है? हाँ, लेकिन भगवान का फेवर अनफेवर क्या उनका अपना कुछ उससे प्राप्त करने के लिए है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए तुम ऐसा करो, मुझे ऐसे, मुझे इससे दुख होता है, इस तरह से नहीं है। भगवान को तो भौतिक जगत से, वो तो आत्मा राम है, इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। लेकिन हमारा उसमें
दुख है, इसको देख करके भगवान हम अगर भगवान से दूर होंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। मछली की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है पानी के अंदर रहना, इसलिए जीव जो है वो भगवान का दास है, इसलिए भगवान की सेवा में ही वो सुखी हो सकता है, वही उसका सुख है। तो जब जीव भगवान से दूर जाता है सेवा भावना से, तो वो जिस कार्य करने से भगवान से दूर जाए उसे पाप घोषित किया गया है, क्योंकि उससे जीव दुखी होगा, उससे भगवान के साथ उसका संबंध और दूर होगा। और पुण्य वो चीज़ है जिससे वो धीरे धीरे भगवान के नज़दीक आए। धीरे धीरे रियल नज़दीक आना कैसे है? भक्ति से। वो पाप और पुण्य के बियॉन्ड है, लेकिन पाप और पुण्य एक लेवल पर है कि कम से कम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हो। इस भौतिक जगत में कैसे स्वस्थ रहा जाता है विद एन एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, उसको पुण्य है, वो पुण्य कहा जाता है। तो उससे कम से कम चेतना तो रही कि भाई भगवान के आदेश का पालन करना है, ये जगत भगवान ने बनाया है, इससे उनके आदेश का पालन करना है। दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड। एटलीस्ट यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट गॉड एग्जिस्ट एंड आई एम डिपेंडेंट ऑन गॉड। दैट इज वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड। तो इस तरह से उसको पुण्य कहा गया है। तो उस तरह से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी है एक्सेप्ट कि ये सब चीज़ें भगवान दे रहे हैं। सो दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड। वो एक आदमी है, अरे कोई भगवान भगवान नहीं है, ये सब चीज़ें अपने आप आ गई हैं, एंजॉय करो। एक ये चेतना है, और एक चेतना है कि जो ये बनाया है भगवान ने बनाया है और भगवान हमें दे रहे हैं, तो उससे कम से कम भगवान की तरफ एक कदम तो बढ़े, कम से कम उनको एक्सेप्ट तो किया कि यस गॉड एग्जिस्ट एंड दैट गॉड इज हेल्पिंग मी। मेरा सुख जो है भगवान दे रहे हैं, वो एक कदम भगवान की तरफ है। इस तरह से वो पुण्य है, लाइक दैट। लेकिन अगर वर्शिप का अल्टीमेट एंड भी यही हो कि बस हमें भगवान की पूजा इसलिए करनी है कि नहीं करेंगे तो हम नरक में दुख भोगेंगे, तो फिर वो बहुत ही लिमिटेड लेवल की वर्शिप है, वो हाईएस्ट लेवल की नहीं है, वो हायर लेवल की नहीं। कन्वर्ट होगा यदि वो हमारी समझ के अंदर है तो। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, अगर यही दी एंड है, दैट्स ऑल व्हाट इज ऑल स्पिरिचुअलिटी अबाउट, कि आप भगवान को मानो तो आप स्वर्ग जाओगे, तो फिर कैसे वो भगवत प्रेम डेवलप होगा? तो नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें भगवान का आदेश पालन करना है विद द अल्टीमेट गोल टू डेवलप लव फॉर हिम, तब वो होगा। समझ रहे हैं? अगर वो लक्ष्य है दिमाग में तो धीरे धीरे वहाँ बढ़ेंगे। अगर वो लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखते हुए हम कर रहे हैं, तो फिर तुम जहाँ हैं उसी स्तर पर जाकर के ही रुके रहेंगे। जस्ट आउट ऑफ फियर वी विल डू। गॉट द पॉइंट? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।